मुझे ऐसे लग रहा है यार, आई एटलीस्ट वांट टू प्रोड्यूस वन डॉक्यूमेंट्री Hmm. that will put India on a global stage. Welcome to the AG Pod. Do you remember where we were? We had some technical issue, that much I remember. Yeah, so we were talking about the work culture in journalism industry and especially in media industry as a whole. Yeah. Uh, I think right now what I see it is pretty toxic. Uh, पर मुझे लगता है टाइम के साथ things will change because the newer generation that is coming into the industry, they are very particular about what they want. I mean, Yeah. be it a login, logout time, weekends, holiday calendars, Hmm. they are very particular about the work-life balance. But Yeah. I guess we don't used to think like that. We always thought Hmm. that grinding is the only way to be on the top. Yeah. और हम मतलब वही होता था ना कि Hmm. 5 या 6 दिन काम करो और लाइफ बस एक दिन जियो जो अब Hmm. तुम्हारा वीक ऑफ है. बट Hmm. अभी चीजें चेंज हो रही है. एक्चुअली ये वो कॉर्पोरेट में चेंज हो चुका है, Hmm. बट वी डोंट सी दैट हैपनिंग और रिफ्लेक्टिंग इन मीडिया इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ. बट आई एम ऑप्टिमिस्टिक दैट in coming 2 3 years things might change. So, according to you, or rather, um, your from your viewpoint, what would be the best, uh, you know, suitable way of working, which would include a person having some time off during the week, or having Hmm. that space to not overwork and to Hmm. do, because अभी यूरोप में क्या हो रहा है, people have started doing like four days a week or 3 days a week in Hmm. Switzerland and other parts of Europe. So slowly, and this might be controversial, but even Elon Musk has said that, working would be optional in the future. A Right. lot of people are not going to be working, right? Right. Because everything is being automated, from your emails to your, grocery shopping, to everything Exactly. is automated. So there will come a time, even journalism, like the AI industry Right. in media, is going to go full speed, and things will be automated. So what, for you, from your viewpoint, what is a suitable time frame for working for a person during a week? अगर तेरा बस चले तो तू ये लागू करवा दे लॉ, तो क्या यार, होगा? सो रिसेंटली इफ यू हैव फॉलोड जो पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा है इंडिया में स्पेशली, सो नाउ दे आर कमिंग अप विद दिस लॉ वेयर you can't call your employee after he logs out or on his weekends. जो यूरोप में और वेस्टर्न हाँ, कंट्रीज में तो हाँ, पहले से हो रहा है, पहले बट से ही, हाँ। इंडिया में ये होना बहुत बड़ी बात है. बिकॉज हम्म, इंडिया में ये कल्चर है कि योर बॉस विल पेस्टर यू इवन ऑन योर हम्म, वीकेंड्स. तो ये तो होता है, बट व्हाट आई फील इज दैट अगर बेसिक चीजें भी इम्प्लीमेंट होती है इवन इन मीडिया इंडस्ट्री एंड basic in the sense I mean 9 hours of working, you हम्म, give 1 hour of lunch break or a break in between, राइट। and you have a enough workforce where you don't ask your employee to do a multiple task in a single day. हम्म, So हम्म, what I see now is जब मैं स्टार्ट किया था या जब मैं देख रहा था when I was interning, अगर राइट। ये 2 साल की बात है जब मैं हम्म, इंटर्नशिप कर रहा था, मैंने ये देखा कि एडिटिंग के लिए अलग बंदा है, देन यू हम्म, हैव वन फॉर राइटिंग स्टोरीज एंड यू हैव वन फॉर वीडियोग्राफी और एनीथिंग या, रिलेटेड टू ऑडियो विजुअल टेक्निकल थिंग, प्रोडक्शन, या। production thing, right? But now what I see is a lot of openings that I see on LinkedIn. What they are हम्म, demanding is you should be able to uh, give a bite in front of a camera. तुम ही स्क्रिप्ट लिखोगे, तुम ही वीडियो जर्नलिस्ट बनोगे, and you will come back and edit that package, and then you will also manage a social media for that organization. So now they want a single person to do the task of 4 people, which doesn't make any sense at all. ब्रो, तू मतलब दिल से बात कर रहा है तू। हाँ, ठीक है, चालू चालू कर, चालू। तो कीप तो गोइंग, कीप यार गोइंग। मैंने सोचा कि यार ये तो नहीं होना है, क्योंकि आ, एक एडिटर का जॉब completely डिफरेंट है. स्क्रिप्ट राइटर का हाँ ठीक है, यू शुड डेफिनेटली हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग सो दैट यू कैन वर्क विद अ सिंक. हम्म, जब तुम इनके सबके साथ काम कर रहे हो, यू यू कैन कोऑर्डिनेट बेटर, यू कैन प्रोड्यूस अ बेटर स्टोरी पैकेजेस.
but that doesn't mean that you have to do it yourself. If you are doing everything by yourself, Hmm. obviously you will have like stronghold. Maybe you have a stronghold on editing, but Hmm. you are not a good person in front of a camera. Hmm. That will definitely like affect the production Hmm. quality for sure. And that is what needs to be understood by the industry or by the organizations that are putting out such job descriptions and job profile. And that is what happening with the organization that I am working with right now. I mean, Hmm. they they, they are literally matlab they don't care about the quality of the Hmm. product. All they want is the quantity. And I think it doesn't align with what I think or what I want to do. Honestly, like this is the trend here as well, and I can tell you, I can speak for myself right now. Like the charity I was working for, I'm no longer working for that charity. They wanted me to do everything what you just said. So what I can say, and correct me if I'm wrong. So क्या हो रहा है कि जो भी बिगनर जॉब्स हैं Hmm. और जो इनका जिनका सैलरी थ्रेशोल्ड कम है, Right. उनको वो जॉब्स के लिए वो मल्टीटास्किंग वाला बंदा हायर करना चाहते हैं, ठीक है, Right. बिकॉज दे वांट टू सेव मनी, राइट? दे नॉट गोना हायर समवन फॉर एडिटिंग, अ वीडियोग्राफर फॉर वीडियो फिल्म मेकिंग एंड देन स्टोरीज के लिए अलग। तो वो Hmm. चाहते हैं कि एक में ही सारा कुछ कर लें। ये बिजनेस है भाई, ये दिस Right. इज अ बिजनेस मॉडल। Hmm. However, like as you said, it's and ultimately क्या हो रहा है, people are like burnouts हो रहे हैं, and you just get so frustrated because तुम 10 बंदों का काम कर रहे हो, और तुम कब तक करोगे? मतलब Hmm. मतलब देर इज नो लिमिट टू इट, देर इज नो लिमिट, इट्स अ लूप, इट्स कॉन्स्टेंटली गोइंग 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 Exactly. गोइंग गोइंग। मतलब अभी भी अगर मैं देखूं, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ एक तरीके से, और मैं मतलब फ्रॉम फ्रॉम प्रोडक्शन टू पोस्ट प्रोडक्शन टू एवरीथिंग आई डू इट माई सेल्फ। तो यार अगर जब करना ही है तो खुद के लिए करो ना, फिर जब करना ही है फिर उसके बाद हायर कर लो बंदे। यही तो Right. हो रहा है, और मेरा प्लान फ्यूचर का यही है कि यार आई Hmm. वॉन्ट टू establish myself enough so that I can have people who can help me in things that I'm not good at. Obviously, you Right. can't be good at everything. You can't. This is Exactly. not, मतलब पर वो चाहते हैं कि यू हैव टू बी गुड एट You have एवरीथिंग। to do. तुम पोस्ट प्रोडक्शन भी करो भाई, तुम स्टोरीज भी लिखो, और तुम स्क्रिप्टिंग भी करो, और वीडियो भी बनाओ, और वीडियो भी साथ बना। में बी रोल्स भी लाओ। कहाँ से होगा यार? मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। आई थिंक इट्स अ स्कैम, इट इज अ Yeah, स्कैम ब्रो। it is definitely a scam. It is a scam with employee also or an employer also. या। Because employer भी गलतफहमी में है कि this will work. Definitely हम्म। this is not going to work in a long term. या। एक टाइम के बाद बर्नआउट होना है, and I completely second that thought, what you हम्म। said. हम्म। और वही हो रहा है अभी इंडस्ट्री में. बट दिस इज द थिंग, अगर तू स्पेशलाइज्ड है बंदा, इफ यू आर लाइक, इफ यू गॉट लाइक लेट्स से एक्सपीरियंस ऑफ ओवर a decade of post production editing, तू Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve का मास्टर है, ठीक है, तो तू हम्म. खाली उसी में घुसेगा, पर तेरे को 10 एक साल घिसना पड़ेगा उसमें, खाली खाली राइट, उसमें। राइट. और साथ में तेरे को साथ में फिल्म मेकिंग भी करना पड़ेगा थोड़ा, ये भी करना। आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज टू हैव अ स्पेशलाइज्ड फील्ड। जो तू राइट. इंटर्नशिप में गया था, एंड यू हम्म. यू सॉ पीपल हु वर जस्ट डूइंग एडिटिंग, आई थिंक इट्स हम्म. क्वाइट अ प्रिविलेज ब्रो। राइट, And राइट. to reach that stage, you have to, I don't know how long it will take, but I think sooner or later we'll all get there. डेफिनेटली, डेफिनेटली. नहीं, नहीं, मुझे ये भी लग रहा है ना कि जितने नए लोग आ रहे हैं, स्पेशली हु आर जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम मीडिया इंस्टीट्यूट्स, Hmm. they have this idea that they want to do everything. Uh, Yeah. so, and because of that, there are some unrealistic expectations of Hmm. organizations that there are Hmm. few people who are doing everything, so Hmm. you can do it. So now that's what happening, but they are not understanding that the guy who is doing everything Hmm. doesn't even have a strong hold on a single task he is doing Hmm. throughout the process. Yeah. uh, वही है, बट आई थिंक चीजें चेंज हो रही है. एंड जैसे तुमने बोला स्पेशलाइजेशन का, आई थिंक Hmm. इट्स अ प्रिविलेज इवन टू हैव अ स्पेशलाइज्ड बीट Hmm. where you can write or produce something Hmm. is again a privilege. And I think
anyone needs to capitalize on that rather than trying to do little bit of everything. And I think you can't put a price on creativity, man. Like अभी अभी क्या हो रहा है कि तुम्हारा ये सैलरी मिल जाता है, ये कर लो, और खाली क्वांटिटी की बातें कर रहे हैं कि भाई कितना कितना निकाल सकते हो उतने में. Definitely. तो ये धंधा हो गया ना फिर. दैट इज Numbers लाइक अ, game है. इट्स अ बिजनेस. लाइक Right. देन यू आर नॉट, they are not seeing it as a way to actually elevate people's understanding of a story, but rather they're seeing it as a way to make more money. Like अगर पैसे के पीछे भागना है तो बहुत करियर्स हैं, फिर खाली पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, बिजनेस धंधे वाले तो है ही है ना यार. बट आई डोंट थिंक ये धंधा खाली पैसे के लिए है. आई डोंट थिंक, आई थिंक मनी इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इट. वट एवर यू Right. गिव, Right. उसका तेरे को यू विल गेट अ रेम्यूनरेशन फॉर इट. बट आई डोंट थिंक क्रिएटिविटी का कोई प्राइस है. लाइक रियल क्रिएटिविटी, देयर इज नो प्राइस टू इट. आई यू कांट पुट अ Exactly. प्राइस टू इट. Definitely. And I also feel that if you are honest with your craft, whatever you are doing, be it a podcast or you are covering the Yeah. stories of any particular bit, if you are honest with it, definitely money is gonna come. यहाँ से नहीं वहां से it's going to come, but it's just that you have to be honest with it. And I have seen lot of people like earning lot than the people who are working in Bollywood, right? मतलब if I have to talk about the Indian media industry, I see people who are working in digital realm, be it on YouTube, Instagram, they are earning lot more than what right now Bollywood celebrities are doing it. And it shows that the consumption pattern of people in India has changed a lot. अब सारे डिजिटल पे आ गए, डिजिटल पे कंटेंट बहुत तगड़ा हो चुका है. एंड आई गेस दिस इज द हाई टाइम यार. जो अभी कैपिटलाइज करेगा वही टाइम के साथ बिजनेस भी आएगा, उसी के पास पैसे भी आने हैं. Since you brought up YouTube, my question is कि अभी तेरे को क्या लगता है, like you said कि हाँ कैपिटलाइज करना चाहिए, अभी बहुत लोग कमा रहे हैं. मतलब उस हम जब पुणे में थे और उस टाइम पे तेरे को याद है श्रीकांत का भाई गैजेट वाला वीडियोस बनाता था. रंजीत हाँ. एंड श्रीकांत याद होंगे तेरे राइट. को. मेरे को याद तो है, याद याद है. है, विविडली मुझे याद है. बहुत क्लियरली याद है, और बीच में मैं मिला भी था, एक बार पुणे गया था तो मैं मिला था श्रीकांत से और रंजित से. तो वो लोग काफ़ी खुश हुए थे जब उनको पता चला कि तुम लोग भी बना रहे हो यार, कुछ तो बना रहे हो. मेरा भाई बनाता है और हाँ. कंसिस्टेंटली बनाता है. जब उसका सब्सक्राइबर्स चेक किया तो भाई उसका सब्सक्राइबर्स अब तो मिलियन में होगा, पर उस टाइम पे हंड्रेड्स में था, हाँ. थाउजेंड्स में था. थाउजेंड्स तो में कुछ था. हाँ, हाँ. तो अभी अभी का जो इंडस्ट्री, तू मेरे को बता, जैसा तेरे को पता है, जितना नॉलेज तेरे को है, कि अब तो मतलब काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है यूट्यूब. काफ़ी राइट. ज़्यादा एक तरीके का एक अपना यूनिवर्स है यूट्यूब का, ठीक है. और डेफिनेटली. उसमें क्रिएटर्स हैं. अभी मैं टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे जा भी नहीं रहा हूँ. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यूट्यूब. It's become a universe of its own, and honestly I love YouTube. I spend most of my time on YouTube, ठीक है. ट्रू. मैं नेटफ्लिक्स पे नहीं ज़्यादा देखता, मेरे को मन ही नहीं लगता भाई नेटफ्लिक्स सेम एंटरटेनमेंट. सेम. I just love YouTube, bro, and I feel this platform is so good. साला बोलना नहीं चाहिए, कट कट कर दूंगा मेरे को. निकल जाता है भाई अपने भारतीय दोस्तों के साथ. यार तेरे को फ्री कंटेंट मिल रहा है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिसका मतलब हॉलीवुड से ज़्यादा बेटर प्रोडक्शन है. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम ये सेइंग. कहाँ से हो गया पॉसिबल भाई. वही वही. तुम पैसे दे के सिनेमा जाते हो, 600 रुपये दे के एक आईमैक्स में मूवी देखते हो, वो तुम घर पे देख सकते हो खाली यूट्यूब पे. एक दो ऐड देखने एग्जैक्ट. पड़ेंगे, नहीं तो यूट्यूब प्रीमियम ले लो, अलग बात प्रीमियम है. ले लो. हाँ. बट ब्रो, कैन यू इमेजिन, मेरे को 5-6 साल पहले आई हैड नो आइडिया दिस वाज गोइंग टू बी लाइक दिस. पीपल वर एग्जैक्ट. स्टिल क्रिएटिंग एट दैट टाइम, एंड पीपल आर नाउ क्रिएटिंग इवन मोर. अब तो मतलब राइट. बल्क में आ रहा है कंटेंट, है ना. एग्जैक्टली. और ऑब्वियसली आई डू रिग्रेट आवर टाइम. मतलब उस टाइम पे मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज, कंपटीशन कम था. कम था, बहुत कम था. और तुम क्वांटिफाई कर सकते थे अपना कंटेंट. अभी कंपटीशन है, और मतलब जितना बनाओगे एक ना एक दिन रिजल्ट मिल ही जाता है.
बट उस टाइम पे आई थिंक दैट वाज अ गोल्डन पीरियड, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा लोग नहीं थे और ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था कि ये सब होता भी है यूट्यूब पे। खाली पता था कि भाई एड रेवेन्यू से थोड़े बहुत एड पैसे आ रेव जाते। एग्जैक्टली, और वही वही देख के मुझे भी लगता था यार, दिस इज वेरी लॉन्ग गेम और इतना हाँ पेशेंस तो नहीं होगा एड रेवेन्यू हाँ से। और हार्डली वी यूज टू थिंक कि 10,000 20,000 व्यूज भी आ जाएंगे तो कितना, 2,000 1,000 रुपए से भी ज्यादा नहीं मिलना है। एंड दैट वाज, आई मीन दैट वाज काइंड ऑफ डिमोटिवेटिंग फॉर मी मैन, कि यार ये तो इतना करने के बाद इफ यू आर गेटिंग 1,000 2,000 रुपीज फॉर या डूइंग दिस, इट्स बेटर यू डू अ प्रीटी नॉर्मल जॉब 9 to 5 वाला, कुछ शायद उसमें तुम्हें बेटर पैसे मिले। बट या वी वर रॉन्ग मैन, यूट्यूब तो बहुत ही बड़ा हो गया है। आई थिंक पीपल, ये दिस इज अ साइकोलॉजी ऑफ मनी। एक बुक है, बुक भी है, आई वुड रिकमेंड हाईली टू रीड। आई थिंक हम काफ़ी छोटा सोचते हैं। वी थिंक वेरी, मतलब ये घर मिल गया, ये गाड़ी मिल गई, ये खाना खा लिया, ये चलो दो हॉलीडे मिल गए इधर स्पीति बट उधर। एग्जैक्ट। लाइफ सेट है। बट ब्रो लाइफ उससे ज़्यादा बड़ी है, और आई थिंक तुम्हारा अगर विजन कुछ बड़ा करने का है तो उसके लिए तुमको थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कुछ साल। और बहुत गंदा सैक्रिफाइस भी हो सकता है, बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल सैक्रिफाइस भी हो सकता है। क्योंकि आई थिंक अभी मैं ज़्यादा फिलॉसफी में नहीं घुसना चाहूँगा, बट मैं घुस जाता हूँ। There's no आई नो इट uh, मैन। I think personally, and from my own experience, I feel like you got to choose your own pain, bro. Like everyone has to experience pain in this lifetime. Ab suffering is different matter. I'm talking about pain in general sense कि तेरे को कहीं ना कहीं पे you will feel hurt and pain. You have to choose कौन सा pain तू लेना चाहता है। एंड वेदर अगर तू यूट्यूब में 5 साल घिसने का पेन लेना चाहता है, या तो तू कॉर्पोरेट में जॉब करके 25-30 हज़ार का सैलरी लेके और मम्मी से डांट सुन के पेन लेना चाहता है। चॉइस इज़ योर्स। आई हैव डन द चॉइस। 25,000 वाला सैलरी। उस टाइम पे भी सब मतलब वो तो मोमेंट्स की खुशी है ना, चलेगा भूटान, ये कर वही लिया वो कर लिया, मज़े आते हैं। बट आई थिंक वो लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है ब्रो। और जितने भी बड़े बड़े लोगों को मैं देख रहा हूँ, सब मतलब एवरी वन कम्स फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड इन द एंड। राइट। कहीं ना कहीं से तो यू हैव टू स्टार्ट। नो वन कम्स फ्रॉम अ, इफ़ यू आर प्रिविलेज्ड कि अगर तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल have come from humble beginnings, and you have to sacrifice your time for it. पैसे नहीं मिलेंगे ब्रो, सोच लो 2 4 5 साल पैसे नहीं मिलेंगे। एंड जो, क्योंकि यार सोसाइटी का इतना प्रेशर रहता है, माँ बाप क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, पैसे कम हैं, सब गाड़ियाँ ले रहे हैं, मैं घर नहीं ले रहा, मैं आई थिंक उसके वजह से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरे को ऐसा फील होता है। I mean, I just want to add one point to what you said right now, is that उसके पीछे और एक साइकोलॉजी है। जॉब में होता यह है कि you know that you have a stable income. 1 तारीख को money is सैलरी going to आती be है। credited in your account, तो that kind of gives you a dopamine hit कि भाई मेरे को stable job है, I can pay my bills, there is no uncertainty in my life, and so यस। you kind of get what stuck in your comfort zone of it. दैट्स Uh, करेक्ट, दैट्स 100% but करेक्ट। then at the same time, all the creators, and even I'm saying it to myself, that you have to understand that there is a bigger platform that allows you to go out there, experiment with different kind of content, and present what you have in front of the world. मतलब उससे बेटर क्या हो सकता है? और वही तो। अ, हमने देखा है कि जब हम वेब ट्रैवलिंग का सोच रहे थे, तब जो क्रिएटर्स थे, फॉर एग्जांपल, मुझे अभी भी याद है, ट्रैवल व्लॉग्स बनाते थे वो, रोनियन बार्टी यूज्ड टू मेक इट। आई रिमेंबर हिम, या हाँ, भुवन बम था, भुवन बम तब कॉमेडी वीडियोस बनाता था। एंड नाउ ऑल दीज चैनल्स आर लाइक वर्किंग ऑन इटसेल्फ, मतलब ऑटो पायलट मोड पे है। All they get money is from brand collaborations and cross collaborations with other content creators. तो मुझे लगता है यार, एंड गोइंग अहेड और ज्यादा वेज या मल्टीपल टेंजेंट्स क्रिएट होने वाले हैं यूट्यूब पे ही टू अर्न मनी,
Hmm. And I feel कि यार the best time to start YouTube is today. Like Hmm. वही है. Agreed, तो agreed, agreed. I think, but again, the pain of not receiving any money from YouTube, मतलब is hard, bro. yeah, और वो तुमको चूज करना है कि तुम उस डिसीजन से खुश हो कि नहीं, क्योंकि यार वो जो तू सैलरी का बात कर रहा है, इट इज़ 100% करेक्ट. आई थिंक वी डोंट लाइक अनसर्टनिटी एज ह्यूमन बींग्स. mm, मुझे पता होना चाहिए मैं कल क्या खा रहा हूँ. मुझे पता right, होना चाहिए कल कितना आ रहा है पॉकेट में. मुझे पता definitely. होना चाहिए परसों मैं भूटान या कहीं पे भी ट्रिप करूँगा कि नहीं, 2 महीने हाँ, 2 साल में जब एक भी. बट आई वॉन्ट सम सर्टेनिटी एंड स्ट्रक्चर दैट अ जॉब गिव्स, राइट? exactly. But I think in an industry like YouTube, as a creator, if you're starting out, it's just hard to be certain about certain things. Yeah, कि yeah, नहीं हो मतलब यार it's not possible. 100 videos करने के बाद also is no guarantee that you will boom. yeah. But if you have faith, I think faith is a huge thing, and we can go on that too. But if you Yeah, have faith in yourself, and if you know your craft, if you're honest with your right. craft, as you said, यार तुम पैसे की टेंशन क्यों लेते हो? काम करो ना ब्रो. वही वही तो है. अभी का यूट्यूब का तेरे को क्या सिनेरियो लग रहा है? व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर? बिकॉज I have listened to the CEO of YouTube. I even हम्म, saw a podcast with Nikhil Kamath, and he was saying हम्म, that they want their fundamental goal is uh, for people who are using YouTube to stay on the platform. right. कि जितना तो यू स्पेंड टाइम ऑन द प्लेटफॉर्म, द मोर दे, आई मीन यूट्यूब प्रोग्रेसेस बेसिकली. तो वो दे आर लाइक वी डोंट डू एनी थिंग, वी जस्ट ऑफर यू द प्लेटफॉर्म एंड यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद इट. हम तुम्हें थाली दे रहे हैं, तुम थाली से जो करना है करो. तो तेरे को Definitely. अभी इंडिया का क्या लगता है यूट्यूब कोलैबोरेशंस को लेकर के? जैसे अभी अभी बहुत सारा मिस्टर बीस्ट और कैरी मिनाटी का वीडियो चल रहा है, अभी बहुत Definitely. हाँ वायरल ना. हुआ है. हाँ, हाँ. तो ग्लोबली व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशंस इन इंडिया विद क्रिएटर्स? बिकॉज अभी मेरे को नहीं लगता अभी इंडिया पहुंचा है वहाँ पे कि यार लोग हम्म, जानते हैं कैरी मिनाटी को. हम्म, नहीं पहुंचा है. केएसआई को लोग जानते हैं, लोगन पॉल को लोग जानते हैं, definitely. बट कैरी मिनाटी को नहीं जानते. हम्म. तेरे को एक और कौन सा बंदा है, अभी निखिल कामत को जानना लोग क्या निखिल लोग किए कामत हैं. को अभी स्टार्ट किया है. बियर हाँ. बाइसेप्स को देख रहे हैं थोड़ा बियर बहुत. बियर तो ये सब बियर बड़े बड़े बाइसेप्स है. चैनल्स हाँ, हैं, और हाँ, ये लोग इंडिया का नाम थोड़ा ऊंचा लेके जा हाँ, रहे हैं, विच ग्लोबल इज़ स्टेज पे ला रहे हैं. कमेंडेबल. हाँ, हाँ, हाँ. बट तेरे को क्या लगता है, और कोलैबोरेशंस होंगे इन द फ्यूचर? Yeah. और इज दिस गोइंग टू बी अ न्यू वे ऑफ मीडिया इन इंडिया, अ न्यू एरा ऑफ मीडिया जहाँ पे पीपल विल रिकग्नाइज क्रिएटर्स कि हाँ भाई ये एक इंडस्ट्री, ये एक करियर है. जब Hmm. बेटा बाप पूछेगा बेटे से कि बेटा क्या बनना चाहते हो, तो बेटा बोलेगा And पापा मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ. it's एंड already व्हेन happening. is it really Yeah, happening? yeah, yeah. It's already happening. मतलब recently I was watching some reel on Instagram और normally जैसे बच्चों को पूछा जाता है फोर्थ ग्रेड या थर्ड ग्रेड के बच्चों को, what do you want to become when you grow up? And lot of them said that I want to be a YouTuber. And that was kind of surprising to me, but at the same time, it was obvious that uh, at the pace YouTube is growing in India, it is quite obvious that even parents want their child to be a YouTuber. But definitely it comes with a risk. You have to be consistent and जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, जो अनसर्टेनिटीज है यूट्यूब की, Hmm. that needs to be taken care at the same time. पर हाँ, वो तो हो रहा है. Coming back to your first question, जो तुमने बोला कि Hmm. what Hmm. is the future of YouTube और क्या बनेगा ये आगे जाके, Hmm. and I feel it will be something like a one-stop destination for everything. Right now, Hmm. it is primarily a video platform, Hmm. जहाँ पे you will get to see long form videos. Obviously, YouTube Shorts भी है, Hmm. but at the same time, I feel कि जहाँ पे you will get to chat with people. मतलब एक social media platform की तरह Hmm. भी shape ले सकता है YouTube. Hmm. वो तो डेफिनेटली होगा. और जहां तक बात है कि इंडियन क्रिएटर्स ग्लोबल स्टेज पे आने की या Hmm. ग्लोबल जो जो भी वेस्टर्न क्रिएटर्स हैं उनके साथ कॉम्पीट करने की,
So I think that is already happening. I mean, even Mr. Beast want to collab with Carrie Minati because you just can't ignore the Indian market that we have. That's a huge Uh, market. Yeah. Exactly. If you look at मतलब अभी का ही एग्जांपल अगर हम ले ले लियोनल मेसी विजिटेड इंडिया Ah. तो पूरा उसका टूर था प्रॉपर Hmm. इंडिया में Hmm. और जितनी भीड़ थी आई फेल्ट लाइक इट स्टेडियम में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच हो रही है वर्ल्ड कप फाइनल और इतना खचाखच भरा हुआ था सो यू मतलब एक परसेप्शन है कि इंडिया में शायद सॉकर के उतने ज्यादा Fans नहीं है. फॉलोअर्स नहीं होंगे या फैंस नहीं होंगे या Hmm. अगर होंगे भी तो इतना ज्यादा नहीं होंगे कि सिचुएशन विल गेट आउट ऑफ कंट्रोल इफ मेसी कम्स टू इंडिया Hmm. और वही वही चीज चीज हुई है सो इवन ग्लोबल क्रिएटर्स नो दिस थिंग that there is Hmm. a huge market for them in India and if they want to capitalize it they have to collaborate with the Indian creators who are doing well in the Indian market and यही हो रहा है अभी आगे जाते हुए और इवन मिस्टर बीस्ट ने जो अपने प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में Hmm. लॉन्च किए और Ah. बहुत ग्रैंड टूर और ये सब कुछ हुआ था तो ये तो डेफिनेटली हो रहा है इवन सेम चीज वी कैन सी इन हॉलीवुड प्रोडक्शन Hmm. हाउसेस कोलैबोरेटिंग विद द बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउसेस वार्नर ब्रोस हो गया या यूनिवर्सल स्टूडियोज हो गया सो Which movies have they collaborated with recently? सो देयर इज वन मूवी कमिंग अप जो रामायण करके है सो रामायण का सीन ये है कि दे आर प्लानिंग टू compete with something like Avatar. And why I'm saying that because the production house who is doing VFX of Hmm. Ramayan is the same production house who did VFX for Interstellar and Inception and Tenet and other big projects of Hollywood. So there is this VFX house called DNEG. Hmm. Uh, तो उसका ओनर इंडियन है नमित मल्होत्रा Hmm. and the budget for Ramayan is somewhere around 4,000 crore, which is huge. So they are trying to compete. Definitely, Indian Hmm. movies don't have that kind of a VFX when we compare it to the Hollywood. Hmm. It looks shabby और Hmm. उतना high quality नहीं लगता है. But But why now is they that, bro? Like, I always ask myself this question: why do I want to watch Interstellar and Tenet? Why do we not produce movies like that? क्यों नहीं? अब अपने पास उतने पैसे नहीं है कि उतना resources नहीं है. What is the reason you think? आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसके बारे में यह है कि जितने भी वीएफएक्स हाउसेस है या वीएफएक्स का काम हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है सरप्राइजिंगली हॉलीवुड का Wow. बहुत सारे एंड सो डेफिनेटली ये तो नहीं है कि वी डोंट हैव रिसोर्सेस और टैलेंट पूल to Hmm. pull off such projects. Definitely, we have the talent pool to Hmm. do it. Yeah. Problem here is the revenue that you are going to get out of it. Hmm. Uh, if I am putting 4,000 crore in a movie, I Hmm. have to make sure that it just not does well in Indian box office, but global stage पे भी वो अच्छा करे. Because we know if Christopher Nolan is producing a movie, Hmm. Hmm. it's not only going to do good in US, but Hmm. पूरे global stage पे it is going to do good. India में the problem is if we try to do that, Hmm. there is a very high risk factor that it may not work with the Western audience or it may not work with the other countries of Hmm. Asia. तो वो risk producer नहीं लेना चाहता है. So अच्छा. he wants to keep that budget somewhere between 200 to 300 crores or 300 to 400 crores. And if you are keeping a budget of around 300 400 crores तो यही VFX मिलने वाला है. आप टेनेंट या इंटरस्टेलर नहीं बना सकते. At the same time, you also have to understand the psyche of Indian audience. I अगर was I was इंडियन I was actually thinking about that, to be honest, when you said that. तो Yeah, just before you when said that. we say that Interstellar did well in India, even Hmm. we know that the people who really appreciated Interstellar are very few. Hmm. The people who know the craft of it, who know what goes behind making it, who appreciates it, तो वो ऑडियंस बहुत छोटा है अभी भी इंडिया में. तेरे को लगता है ऐसा? Yeah, हाँ this is मुझे the reality. मुझे 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 इस हाँ मुझे लगता है इसलिए क्योंकि अभी भी इंडिया में सैयारा जैसी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज्यादा करती है और होम बाउंड जैसी मूवी जो ऑस्कर के लिए सिलेक्ट हुई है या इवन ट्वेल्थ फेल जो ओटीटी पे बहुत ज्यादा चली
बट जब थिएटर्स में थी तो थिएटर्स खाली पड़े हुए थे, एंड these are the finest work of बॉलीवुड. मतलब बॉलीवुड हार्डली प्रोड्यूस करता है ऐसी मूवीज, बट जब ऐसी आर्ट फिल्म्स आती है, डायरेक्टर को चाहिए कि ऑडियंस आए और अप्रिशिएट करे. व्हाई इज ही प्रोड्यूसिंग अ फिल्म? उसको चाहिए कि हाउसफुल हो उसका शो. हाँ बट एग्जैक्टली या अभी तक आई थिंक we haven't reached there where we will start appreciating films like that. Once we get there, I think directors and producers will definitely start to produce a movie or stories that will in the power of like Interstellar and Tenet and other sci-fi movies that Hollywood creates. I'm actually waiting for that moment, bro. Like where I no longer have to watch just Hollywood movies to find the good stuff that I want, that my Yeah, soul longs for. I just watch something from my own country and be proud about it. And I think the mission for all the creators and directors, producers is to reach that stage. I think yes, Bollywood movies are a bit you know dramatic and मतलब मासी. वो हमारा हमारा वो एक हम, तरीके हाँ, persona है एक तरीके का राइट राइट कि वो करण जौहर राइट. वो that is our persona, but can we create something like अब रामायण आ रही है, अब देखते हैं कि क्या होता है रामायण का एग्जैक्टली. सीन. बट जो हमारे पास स्टोरीज हैं, देयर आर सो मेनी स्टोरीज इन इंडिया एंड अनटोल्ड स्टोरीज एंड दैट कैन राइट. शेक हॉलीवुड. I want that in the future. I really look forward to a day कि यार बोल सके भाई ये अपना है bro. Yeah. Like for Oscars and all. But Diljit's movie got nominated for Grammy, right? ये वाली चमकीला चमकीला. चमकीला चमकीला आई So गेस. I follow Diljit very much because मेरे को लगता है ये बंदा he's doing a lot for the community, for the culture, and he's put Yeah. his name with the country. So I follow people like him and obviously A.R. Rahman in music. Right. So we want more filmmakers who can get to that level like A.R. Rahman and Diljit. अभी Diljit का they have introduced a study on him in Canada. मतलब यूनिवर्सिटी का कोर्स पे दिलजीत का नाम है. So people will study how he progressed in his music industry, music career, क्योंकि बहुत बड़ा नाम बन चुका है Billboard top 100 और जो भी है. तो I want more people like that. That would be awesome, right? What is something that you desire? यार मेरा लेटली आई एम मोर इनटू डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, तो मुझे ऐसे लग रहा है यार आई एटलीस्ट वांट टू प्रोड्यूस वन डॉक्यूमेंट्री that will put India on a global stage. Documentary filmmaking के perspective से I am talking. So I want to do something like that in coming 2-3 years. I am actively working on few stories. I want them to like get converted into the videos. I'm not sure कि कब होगा कैसे होगा, but I am really manifesting it कि हो जाए जल्दी. बाकी यार ऐसा कुछ है ही नहीं. आई वांट टू ट्रैवल होल वर्ल्ड मैन. मतलब जल्दी करना है यार. बूढ़ ऐसे फील हो रहा है. आई एम ऑलरेडी 27 एंड आई फील कि यार बहुत जल्दी टाइम स्लिप हो रहा है. एंड आई वांट टू ट्रैवल वर्ल्ड, एंड आई थिंक जितना जल्दी हो सके बस पैसे आए. इवन I don't have any aspirations of saving lot of money and saving it for my retirement and something like that. I don't have such thoughts. I want to just have a stable money so that I can travel frequently. बस Wow. यही है. मतलब there are many, like there are only like few people who could actually say that, क्योंकि सब अभी स्टेबल करियर, स्टेबल एक इनकम होनी चाहिए, घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, और तेरे को बोलता है फर्क नहीं पड़ता ब्रो, मैं तो निकल अपना एक बैग लूंगा और निकल पड़ूंगा. विच इज़ ग्रेट. बट आई थिंक जितना जितना भी ट्रैवलिंग कर लो और जितना भी ये सब कर लो, अल्टीमेटली मतलब एक लॉन्गिंग होती है कि यार वापस तो घर ही आना है ना. तो घूम फिर के मतलब आदमी घर ही आना चाहता घर ही है. आता अब है. घर Oh, यू कैन कॉल होम एनी प्लेस, any place. दैट कैन बी Yeah. एनी प्लेस. Right. टॉकिंग अबाउट होम, आई हैव कम टू योर होम, राइट? और मैं मतलब मस्त मटन भाकरी खाया
और क्या बोलते हैं मस्त कल्चर में मर्स्ट हुआ उस टाइम पे, मतलब क्या 7 साल पहले ब्रो, इट्स बीन सो लॉन्ग। और मेरे को अभी भूख भी लग रही है, सोच के मुंह में पानी आ रहा है। तेरे को पता, यू वुड बी अमेज्ड, I've been a vegetarian for 7-8 months now. uh, I don't know what reasons I can give you for that, but it just happened. Some things put me off. I watched a bunch of documentaries Right. and so on. I don't know if you know this or not, but it's been 2 years and I have turned vegetarian. More than 2 years. Yes. Whoa, so we are in the same boat, Yes, bro. so we are in the same boat, man. And 2 years. You've yes, not yes, touched yes. meat. No, no, no. I No I haven't even fucking touched way. a egg. I haven't even touched egg. Bro, are you kidding me? Yeah, yes, yes, bro. So, I mean, it Oh, was. this could be like episode 2 on just on just Uh, food. yeah. So initially I thought I'll not disclose this thing on podcast because ये अलग फिर एक ये अलग conversation हो एक जाएगा. हाँ, ये कॉन्वर्सेशन है, अलग अपना हाँ। conversation है. हम्म बट जब तूने अभी बोला 6, 7, 8 months तू भी वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर रहा है एंड आई वाज हम्म लाइक कि यार सेम बोट पे है हम दोनों भी. Wow, man. Great. Thanks for. I think we'll have to wrap up soon. या या Yeah, we've already. I think because of technical issues, we had to cross a bit of time. So, yeah, thanks for coming to my show, and I hope we get to do another episode soon where we can just talk about food and the change, because I think there is so much to catch up on, bro. but I'm still trying to wrap my head around that you are following vegetarian diet. I don't know for how long you will follow it, but still it's a I mean good thing to hear. And again, thank you so much for inviting me and hosting me on your podcast. Yeah. It was a fun conversation, and at the same time, it's a really interesting way to catch up. I never thought we will catch up on a podcast. Yeah, me too. I think this is a good way to catch up, to be honest. Exactly, exactly. Yeah. Yeah. No, I'm glad you enjoyed, and I hope we can do more of these, and maybe I can help you with your documentary too soon. Yeah, yeah, sure, sure.